بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول پریکٹس میں جب وکیل صاحب کسی پارٹی کو ڈگری لے دیتے ہیں، اس کے حق میں ڈگری جاری ہو جاتی ہے، تو بنیادی طور پر وہ ڈگری کا پرزہ، ڈگری کا کاغذ اس کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ نئی مصیبت جو ہے وہ ڈیو ٹو ان مشکلات ہے جو ڈگری کی ایگزیکیوشن کے دورانیے میں پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سیٹلڈ ریومر ہے ہمارے ہاں کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی فریق مقدمہ کی مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان متنازع امور اور اعتراضات کو تعمیل ڈگری میں اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے متنازع امور اور کچھ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جو کہ اجرائے ڈگری کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے تنازعات، ایسے امور جو متنازع ہیں، جو اجرائے ڈگری کے دورانیے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ان تنازعات اور ان متنازع امور کا فیصلہ بھی کرے، تصفیہ کر دے، فیصلہ کر دے۔ اس میں سیکشن 47 آف سی پی سی واضح کرتا ہے تمام امور اور وہ تمام questions to be determined by the executing courts۔ وہ تنازعات جن کا تصفیہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے ذمہ ہے وہ ہیں فریقین کے درمیان تنازعات جو ہیں، دعوے کے فریقین کے قائم مقامان جو ہیں ان کے درمیان تنازعات، دعویٰ کے فریقین کے قائم مقامان کے متعلق تنازعات، کون سا بندہ قائم مقام بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، مشترکہ اگر پلینٹفس ہیں یا مشترکہ ڈیفینڈنٹس ہیں تو ان کے درمیان کیا کیا تنازعات ہیں، ڈگری کی تعمیل یعنی اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کیا کیا تنازعات ہیں، اور ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کے اعتراضات کیا کیا ہیں۔ یہ وہ تنازعات ہیں جن کا تصفیہ کرنا ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے ذمہ ہے انڈر سیکشن 47 آف سی پی سی 1908۔ ایگزیکیوٹنگ کورٹ وہ کورٹ ہے جو کہ ڈگری یا آرڈر کو انفورس کرتی ہے تاکہ جو ڈگری دار ہے وہ اس ڈگری کے فوائد کو، اس ڈگری کے پھل کو حاصل کر سکے، جس مقصد کے لیے اس نے ڈگری لی ہے۔ کون سی کورٹس ہیں جو اپنی ڈگریوں کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں؟ پہلی بات، وہ کورٹ جس نے ڈگری کو پاس کیا، یا ایسی عدالت جس کے پاس انڈر سیکشن 39 آف سی پی سی ایگزیکیوشن کے لیے ڈگری بھیجی گئی، اور ایسی کورٹ جس کے اندر جو پروسیڈنگز ہیں وہ انڈر
सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, या अंडर सेक्शन 150 जो प्रोसीडिंग्स है सिविल वो उसको ट्रांसफर कर दी गई है। उसमें एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर मौजूद है। पहली बात तो टू डिसाइड द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। सबसे पहले वो ये देखेगी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से कौन कौन से तनाज़ात सामने आएंगे, सामने आ रहे हैं, उनका तस्वीर करना। नंबर 2, टू डिसाइड क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज और सैटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री, ये दूसरी बात को देखेगी। तीसरा, टू एग्जामिन द डिग्री, डिग्री को एग्जामिन करेगी कि क्या ये एग्जीक्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके बाद इंटरप्रेट द डिग्री, उसको वाज़ेह भी करेगी, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर होने वाली है तो वो इंटरप्रेट भी करेगी। टू ग्रांट रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर एंड पेनल्टी, कोई रिलीफ अगर देना चाहती है अदालत फॉरफीचर और पेनल्टी के हवाले से, कोई कॉस्ट या कोई सूद इंटरेस्ट उस पर अवार्ड कर सकती है। फिर कन्वर्जन कर सकती है, एडिशनल कोर्ट फीस की ऑर्डर कर सकती है। पार्टीज टू द सूट्स के अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो गया है तो उस तनाज़े को पार्टीज ऑफ सूट के हवाले से उसको हल कर सकती है। हत्ता के डिग्री को मॉडिफाई भी कर सकती है। और अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट ये देखती है कि जो डिग्री पास करने वाली कोर्ट थी उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी लेकिन उसने डिग्री पास कर दी है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो रिफ्यूज कर देगी कि जहां से आप डिग्री लेके आए हैं जिस कोर्ट से, वो तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रखती थी, तो आपने डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने आ गए हैं, तो वो रिफ्यूज कर सकती है उसको एग्जीक्यूशन से। ये प्रिंसिपल बड़ा एक दिलचस्प सा ये केस ला है जो पढ़ने के काबिल है। उसमें ये इंटरप्रेट किया गया है 2002 CLC पेज है 1900। उसके बाद अगर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है देन कोई रिलीफ अपोजिट पार्टी को दे सकती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर सकती है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को रिकॉल कर सकती है। अगर लिमिटेशन के हवाले से कोई सवाल उठ जाता है, किसी किस्म का लेशिस का मसला आ जाता है या लिमिटेशन का मसला आ गया है, उसको देख सकती है। परसेप्ट वो जारी कर सकती है। ए परसेप्ट इज एन interim attachment and executing court may issue percept to any other court competent to execute the decree to attach the property of the judgment debtor। प्रॉपर्टी जो है मदयून डिग्री की वो है शेखपुरा में को, और कोर्ट जो है गुजरावाला में है, तो वो एज परसेप्ट वहाँ की कोर्ट को भिजवा सकती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए। इसको कहते हैं टू इशू द परसेप्ट्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिग्री जो है उसको इंस्टॉलमेंट में करवा सकती है और उसकी इंस्टॉलमेंट करवा के देने की इजाजत जो है वो उसके पास इख्तियार है। उसके बाद जजमेंट डेटर फौत हो जाए तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उससे वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने की इजाजत दे सकती है। अगर किसी किस्म की
डिग्री के अंदर कोई अरिथमेटिकल या क्लैरिकल मिस्टेक है तो उसके पास इख्तियार है कि वो उसको उस गलती को ठीक कर सकती है अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। ये बातें हैं आर्डर 21 और सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी के हवाले से एग्जीक्यूटिव कोर्स के। उसमें पहली दरखास्त अजराए डिग्री अगर बवजाए राजीनामा वापस ले ली गई है तो वापस लेने के बाद 6 साल के अंदर अंदर दोबारा दायर की जा सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। पहली दफ़ा अप्लाई की तो जनाब राजीनामा हो गया, वापस ले ली, 6 माह के अंदर अंदर 6 साल के अंदर अंदर दोबारा दायर की जा सकती है एग्जीक्यूशन। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2016 CLC पेज है 256 में। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है निकाहनामा में दर्ज बीवी की जो जायदाद है उसको अटैच नहीं कर सकती और कार्रवाई इजरा में फरीक बनने की दरख्वास्त जो है वो नहीं दी जा सकती। ये डिसाइड करना क्वेश्चन ऑफ पार्टीज जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जुमरे में है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ये बात कही गई 2016 YLR पेज है 1193 में। और अदालत अपील से अजराए डिग्री के खिलाफ स्टे हो जाता है तो उसकी दरखास्त का खारिज हो जाना केस डिसाइडेड के जुमरे में आता है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन होगी, अपील नहीं होगी। ये बात कही गई 2016 SCMR पेज है 177 में। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जजमेंट डेटर को शो काज नोटिस दिए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये बात 2013 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 129 में ये इंटरप्रेट की गई है। और कंसेंट डिग्री जो है वो डिग्री की तारीफ में नहीं आती, इसलिए इसका इजरा नहीं हो सकता। कंसेंट डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने नहीं जाया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट की गई 2015 MLD पेज है 267 में। उसमें जजमेंट डेटर जो है वो गिरफ्तार हो जाता है। अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई है देन उसका जो श्योरिटी है, उसका जो जामन है, उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती बल्कि जामन बाकायदा मौजूद है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2015 PLJ लाहौर हाई कोर्ट पेज है 475 में। मेंटेनेंस सूट्स जो हैं उसकी एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी गैर मनकूला जायदाद जो है वो फरोख्त की जा सकती है। 2015 SCMR पेज है 128 इसमें कही गई। और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो डिग्री की टर्म्स की पाबंद है। डिग्री की टर्म्स जो लिखी गई हैं उससे बाहर नहीं जा सकती। जो डिग्री की टर्म्स हैं उसके अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट करवाएगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। ये बात इंटरप्रेट की गई 2003 SCMR पेज है 1202 में और 2007 SCMR पेज है 818 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन की जो लिमिटेशन है वो 3 ईयर है, यानी विद इन 3 ईयर आपने पहली एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लाजमी देनी है। लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई है और वो लिमिटेशन है 3 ईयर की। ये बात इंटरप्रेट की गई 2013 SCMR पेज 5 में और इससे पहले 1996 SCMR पेज 759 में। 2007 SCMR पेज है
3 में, यही बात कही गई। उसके बाद कंसेंट डिग्री जो है उसके एग्जीक्यूशन जो है उसमें नहीं जाया जा सकता और उसकी एग्जीक्यूशन अगर अप्लाई किया है तो बाद में इतराज नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो एप्लीकेशन है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री उसमें तरमीम नहीं हो सकती। ऑर्डर 6 रूल्स 17 जो है अमेंडमेंट का वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है वो प्लीडिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। अब वो प्लीडिंग की स्टेज से आगे निकल गई है, बात तो अब एग्जीक्यूशन की तरफ चली गई है, प्लीडिंग की बात पीछे रह गई है। ये बात कही गई 2014 CLC पेज है 1255 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर डिग्री होल्डर की मर्जी है कि वो डिग्री की जो अमाउंट है वो किस्तों में लेना कबूल करे या ना करे, और जजमेंट डायरेक्टर ऐसा मुतालबा करने का कोई हक नहीं रखता कि भाई मैं तो पैसे दूंगा लेकिन दूंगा किस्तों में, नहीं, ये नहीं कह सकता। किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करवाना है डिग्री को, ये तो मर्जी होगी डिग्री होल्डर की। ये बात कही गई 2013 CLC पेज है 492 में। और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर सोने की जो कीमत अगर अदा करनी है तो सोने की कीमत मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक अदा की जाएगी। ये ना हो जनाब सोना तो लिया गया था 1990 में जब सोने का रेट 2000 रुपये तोला था और डिग्री एग्जीक्यूट हो रही है 2017 में, तो वो 2000 तोला के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि वो आज का रेट अगर 50,000 रुपये तोला है देन वो 50,000 रुपये तोला के हिसाब से एग्जीक्यूट होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2013 CLC पेज है 492 में। उसमें एक बात बड़ी टेक्निकल है कि मेन सूट अगर वापस ले लिया है तो कोई दरमियानी हुक्म काबिल अजरा रह नहीं जाता। ये ना हो कि मेन सूट वापस ले लिया है, अब जो दरमियानी इंटरलोकेटरी कोई आर्डर है उसकी एग्जीक्यूशन में आ जाए, ये नहीं हो सकता। ये बात कही गई 2012 CLC पेज है 1251 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अगर ऑप्शन की जाती है जजमेंट डायरेक्टर की जायदाद, तो उसमें डिग्री होल्डर अगर हिस्सा लेना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी जो जजमेंट डायरेक्टर की है, मैं इसका डिग्री होल्डर हूं, तो भाई क्यों ना ये मैं ही खरीद लूं, तो ये खरीदारी उस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए उसको अदालत की इजाजत लेनी पड़ेगी। अदालत की इजाजत के बगैर कतई सूरत वो हिस्सा नहीं ले सकता। ये बात इंटरप्रेट भी की गई 2012 CLC पेज है 498 में और 2012 CLC पेज है 1902 में। उसमें एक बात याद रखिएगा कि फ्रीकैन के दरमियान जब राजीनामा हो जाता है, दावा डिस्पोज ऑफ हो गया है राजीनामे की वजह से, तो ये कोई डिग्री क्रिएट नहीं हो गई, इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन भी नहीं हो सकती। और बजरिया रिट पिटीशन सिविल कोर्ट की डिग्री का अजरा नहीं हो सकता, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर अटैच किया गया है, उसकी कोई गैर मनकूला जायदाद अटैच की गई है जजमेंट डायरेक्टर की, तो रेवेन्यू कोर्ट्स जो है सिविल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है। रेवेन्यू जो अथॉरिटीज हैं वो भी पाबंद है।
یہ بات کہی گئی 2011 YLR پیج ہے 1759 میں۔ اس کے بعد ایک دعویٰ تمیل مختص کی ڈگری دے دی گئی ہے ایک بندے کے خلاف۔ بندہ مر جاتا ہے، خود تو وہ مر گیا ججمنٹ لیٹر، اس کے وارثان کے خلاف بھی وہ ڈگری ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2011 CLC پیج ہے 1246 میں۔ اس کے بعد ایک ڈگری جاری کی گئی، اس کے وہ اپیل چلی گئی، اپیل ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ اب اپیل ایڈمٹ ہونے کے بعد ایپلیٹ جو کورٹ ہے اس کے اپیل کے فیصلہ ہونے تک ایگزیکیوشن پروسیڈنگز جو ہے نا وہ روک دی جائیں گی، اس کو سٹاپ کر دیا جانا چاہیے۔ یہ بات 2009 FCMR پیج ہے 1256 اس میں یہ کہی گئی ہے۔ اور اگر ڈگری ایپلیٹ کورٹ کی ڈگری کے اندر مرج ہو جائے تو ایگزیکیوشن کا اختیار ایپلیٹ کورٹ کو کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایپلیٹ کورٹ جو جس نے مرج کی ہے اس ڈگری کو، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کروائے اس ڈگری کو۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2008 YLR پیج ہے 1900 میں۔ اس کے بعد ایک اہم پروویژن ہے انڈر سیکشن 48 لمیٹیشن ایکٹ 1908 1908 کا جو لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن ہے 48۔ وہ کہتی ہے کہ ایگزیکیوشن ڈگری کی جو لمیٹیشن ہے وہ 6 ایئر ہے۔ ایپلیکیشن دینا جو پہلی فرسٹ ایپلیکیشن ہے نا وہ 3 ایئر ہے، لیکن ایگزیکیوشن کی جو میعاد ہے وہ 6 ایئر ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1990 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 778 میں، اور 2008 CLC پیج ہے 197 میں۔ اس کے بعد اگر ججمنٹ لیٹر فوت ہو جاتا ہے تو ڈگری جاری ہوگی اس کے خلاف، تو ڈگری اس کی جائیداد میں سے، اس کی جو وراثت اس نے چھوڑی ہے اس میں سے اس کے وارثان کے خلاف ایگزیکیوٹ کی جائے گی۔ یہ بات کہی گئی 2007 CLC پیج ہے 1602 میں۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اے پیورلی ڈیکلیریٹڈ ڈگری ایز سچ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ۔ جو ڈیکلیریشن لیا گیا ہے تو ڈیکلیریشن ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروائیں گے آپ؟ کیونکہ وہ پیورلی ڈیکلیریشن ہے، آپ نے اپنا حق ابھی تو ڈکلیئر کروایا ہے۔ اور اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام میں 2006 SCMR پیج ہے 668 میں۔ اس کے بعد ججمنٹ لیٹر کو نوٹس دیے بغیر گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی پراپرٹی کی ایکشن ہو سکتی ہے۔ یہ بات 2006 PLJ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 519 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ ایگزیکیوشن پروسیڈنگ کے دوران اعتراضات جمع کروانے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ججمنٹ لیٹر ہوا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں ہے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس ججمنٹ سے۔ یہ بات کہی گئی 2006 CLC پیج ہے 1555۔ اگر کوئی اپلیکیشن دے دی گئی ہے ایگزیکیوشن ڈگری لیکن وہ ٹائم بار ہے، دین وہ قابل خراج ہے، خارج کر دینے انصاف ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2006 YLR پیج ہے 1280 میں۔ اس کے بعد دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد ایگزیکیوشن آف ڈگری کو معاہدہ بے کی وجہ سے رجسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاہدہ بے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی رائٹ یا کوئی ٹائٹل تو کریٹ نہیں ہوتا۔ دعویٰ ڈگری ہوا ہے، بندے نے پراپرٹی ہمسائے کو بیچ دی ہے، اب وہ بیچنا جو ہے بیکار ہے، معاہدہ بے جو ہے وہ اس کو کوئی
एग्जीक्यूशन को रजिस्टर या टाइटल उसको मिल नहीं गया है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2006 YLR पेज है 1280 में। उसके बाद बैरून मुल्क अदालत से जारी होने वाली डिग्री जो है वो पाकिस्तान में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ये बड़ा एक टेक्निकल सा मैटर है कि डिग्री करवा के आ गए यूके से, अब यूके से डिग्री करवा के आप आ जाए मुजफ्फराबाद या मीरपुर या झेलम या गुजरात में आप एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, तो ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है, वो उनकी डिग्री है। एग्जीक्यूशन का इख्तियार कतई सूरत पाकिस्तान की अदालत में नहीं उसका इजरा हो सकेगा। ये बात कही गई 2006 CLC पेज है 1757 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला आ जाए तो अलग से दावा दायर नहीं किया जा सकता, बल्कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन ही देनी होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 SCJ पेज है 999 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है उसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने जो डिग्री की टर्म्स हैं उनके मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करवाना है। उन टर्म्स से पीछे नहीं जाना और तरीकाकार में गलती से फर्क नहीं पड़ता कोई भी। जो डिग्री जारी की गई है, जो उसकी टर्म्स हैं, उसके अंदर अंदर रहना, उससे बाहर नहीं जाना। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2005 CLC पेज है 165। उसके बाद कहते हैं कि एग्जीक्यूशन दरखास्त जो है अदम हाजिरी खारिज होने के बाद, अदम हाजिरी खारिज हो जाए 6 साल के अंदर अंदर जितनी बार चाहें दोबारा आप दरखास्त एग्जीक्यूशन दायर कर सकते हैं। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 CLC पेज है 1745 में। रिकवरी सूट्स के अंदर जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है 3 ईयर उसकी लिमिटेशन है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 CLC पेज है 303 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर जजमेंट डेटर की जो बैरून मुल्क जायदाद है, उसकी दुबई में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आप पाकिस्तान की कोर्ट जो है वो अटैच नहीं कर सकती। जिस तरह बैरून मुल्क अदालत की डिग्री को पाकिस्तान में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा, इसी तरह एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग में जजमेंट डेटर की बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। ये बात इंटरप्रेट की गई 2005 CLC पेज है 865 में। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो लोकल कमीशन की तकर्री करके एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। तकर्री लोकल कमीशन हो गया है तो ये डिस्पोज ऑफ कर दी जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात 2005 NLR सिविल पेज है 14 उसमें कही गई। और उसके बाद अगर डिग्री जारी करने वाली अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, उसने डिग्री जारी कर दी है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो एग्जीक्यूट करवाने से उस डिग्री को इनकार कर दे। ये बात 2002 में भी और 2004 CLC पेज है 19 जिसमें ये इंटरप्रेट की गई है। और रेंट लॉस के हवाले से रेंट कंट्रोलर के दावा जो है ना बेदखली रिजेक्टमेंट पिटीशन में अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो वही कोर्ट जिसने वो डिग्री जारी की है वही एग्जीक्यूट करवाएगी। जिसने ये आर्डर दिया है उसी ने उसी आर्डर को एग्जीक्यूट करवाना है।
उसके बाद एक बात अहम है कि एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट है उसके पास लोकल कमीशन की तकर्री का इख्तियार नहीं है। ये बात 2004 MLD पेज है 402 में। और अगर जजमेंट डायरेक्टर ने जो डिग्री की अमाउंट है वो अदालत में जमा करवा दी है तो जमा शुदा रकम डिग्री जो है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं डाला जा सकता। ये बात 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 290 जिसमें ये कहा गया है। और अगर अपील के अंदर ऑर्डर सस्पेंडिंग या स्टे ना हो तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रोकी नहीं जाएगी। ये बात कही गई 2002 SCMR पेज है 1034 में। और लिमिटेशन ऑफ जो है एग्जीक्यूशन मियाद डिग्री फाइनल डिग्री से शुरू होगी। तो फाइनल डिग्री हो गई है उस दावे की, देन वो एग्जीक्यूशन के लिए उसकी लिमिटेशन शुरू होगी। ये बात इंटरप्रेट की गई 1999 CLC पेज है 374 में। और उसके बाद अगर जजमेंट डायरेक्टर जो है वो विद इन 30 डेज उस डिग्री के हवाले से इतराजात जमा नहीं करवाता तो ट्रायल कोर्ट का फैसला फाइनल तस्वर होगा। अब उसमें इतराज जमा नहीं करवा सकता आफ्टर 30 डेज। ये बात इंटरप्रेट की गई 2003 MLD पेज है 1983 में। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जो बंदा फौत हो गया है, बंदा मर गया, जजमेंट डायरेक्टर उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो फिर डिग्री किससे एग्जीक्यूट होगी? किससे? क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं, बंदा भी मर गया, जायदाद भी कोई नहीं, मामला भी कोई नहीं, पीछे वारसात। तो इस तरह का एक केस ला था 1999 CLC 331 में। उसके बाद अदालत इजरा जो है डिग्री की अमाउंट की अदायगी में अगर ताहीर की जाती है तो कंपनसेशन की अदायगी का भी हुक्म दे सकती है। ये बात इंटरप्रेट की गई 1994 SCMR पेज है 1966 में। उसके बाद एग्जीक्यूशन के दौरानिए में भी स्टे हासिल किया जा सकता है। ये आर्टिकल 21 का रूल 26 है और इसकी इंटरप्रिटेशन 1994 SCMR पेज है 753 में की गई है। और फ्री कैन अगर दोनों राजी हो जाएं तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरानिए में जो एग्जीक्यूशन का फैसला है वो सालस के सुपुर्द किया जा सकता है। दोनों फ्री कैन की रजामंदी है इसमें। ये बात इंटरप्रेट की गई 1994 CLC पेज है 1530 में। और अगर एक से ज्यादा डिग्रीदार है तो कोई एक डिग्रीदार भी, डिग्री होल्डर भी तमाम डिग्री होल्डर्स की तरफ से एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये बात इंटरप्रेट की गई 1983 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 302 में। ये चंद एक बातें थी जनाब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के हवाले से अंडर ऑर्डर 21 रेलिवेंट विद सेक्शन 46 ऑफ CPC 1908। मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ। आपका शुक्रिया।